Hello dear students, welcome in the next video session of history of class 9th chapter number 6, the age of Guptas. And in this video session we are going to discuss about the Gupta administration. So what kind of administration was there at the time of Guptas? Guptas के time में administration कैसा था? Actually the Gupta rulers, the Gupta emperors established a very capable, very efficient administration. And at that time the administration system was very capable, very efficient, it was a very good, and they established a high ranking administration. तो अगर उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बहुत ही हाई रैंक का एडमिनिस्ट्रेशन था उनका, एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्तास. गुप्तास के टाइम में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू थ्री सब पार्ट्स. नंबर 1 किंग, द पोजीशन ऑफ द किंग. नंबर 2 द मिनिस्टर्स एंड नंबर 3 द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द किंग. सो व्हाट वाज द king? What was the position of the king? So as usual the position of the king was very high. It was at the highest position. So its highest position थी, highest position was enjoyed by the king of the Gupta at the Gupta time, and the kingship was hereditary as usual. Kingship जो थी that was hereditary. Hereditary means after the death of the ruler his son was the ruler. Means एक राजा की डेथ के बाद राजगद्दी पर कौन बैठता था? उसका बेटा ही होता था. ठीक है. सो द किंगशिप वॉज हेरिडेटरी एंड द किंग्स एंड क्यून्स एट दैट टाइम वॉज रिगार्डेड एज द गॉड्स. तो उनको गॉड्स की उपाधि दी जाती थी. देयर फिगर्स वर केप्ट इन द टेम्पल्स. उनकी जो मूर्तियां थी, उनके आइडियल्स जो थे, देयर आइडियल्स वर केप्ट इन द टेम्पल्स एंड दे वर वर्शिप्ड. तो इस टाइप से जो थी राजा की पोजीशन थी, दैट वाज अ वेरी हाई पोजीशन एंड दे वर रिगार्डेड एज अ गॉड. एंड देयर प्रोमिनेंट टास्क वाज, द किंग का जो प्रोमिनेंट टास्क होता था दैट वाज टू इशू पॉइंट्स. If we talk about the prominent tasks of the king, then the prominent task of the king, prominent task means उसका जो main important work क्या थे, राजा का काम क्या होता था? Their prominent task was to issue the coins. Coins means coins को issue करना, currency को issue करना. ठीक है. So this was the first prominent task. This was the first main work of the king, to issue the coins and to appoint the high officials. Appointment of officials at different levels. Different level के ऊपर officials को appoint करना, that was the another task of the king, and giving justice to the people and taking care of the welfare of the people. ठीक है. And framing the laws. So these were the main tasks. Framing laws, giving justice. So these all were the main works, main tasks of the king during the Gupta period, and these tasks are performed by him with the help of number of ministers. तो इन टास्क को अपने पूरे के पूरे जो एम्पायर को देखने के लिए ही अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हु हेल्प हिम इन हिज डिसीजन मेकिंग. तो उसकी डिसीजन मेकिंग में वो जो मिनिस्टर्स होते थे वो उसकी हेल्प के लिए होते थे, राजा की हेल्प के लिए. क्लियर है? सो दिस वाज द पोजीशन ऑफ द किंग. मींस किंग enjoyed the highest position in the society, and his prominent tasks are to issue coins, to appoint high officials at the different levels, framing laws, giving justice, and for all these tasks, for all these activities he had a number of officials who help him in performing these functions. Clear है? Number second है the ministers. Ministers. So at high
टॉप लेवल पे आपके आगे हाईएस्ट पोजीशन पे आपके जो है द पोजीशन हाईएस्ट पोजीशन वाज एंजॉयड बाय किंग एंड नंबर नेक्स्ट वाज द मिनिस्टर्स. So during the time of Guptas, there were many ministers appointed by the king for the different departments. Different departments को देखने के लिए there were different ministers, है ना, like foreign minister, finance minister, foreign minister, finance minister, फाइनेंस मिनिस्टर. फॉरेन मिनिस्टर मीन्स फॉरेन मिनिस्टर जो था, जो फॉरेन अफेयर्स थे, विदेशी जो जितने भी मसले थे, दैट वाज लुक्ड आफ्टर बाय द फॉरेन मिनिस्टर. जो फाइनेंस मिनिस्टर था, हिज मेन वर्क वाज, हिज मेन टास्क वाज टू लुक आफ्टर द फाइनेंस, टू मैनेज द फाइनेंस ऑफ द एम्पायर. नेक्स्ट डिफेंस मिनिस्टर हो गया, है ना. सो डिफेंस मीन्स सुरक्षा. सुरक्षा के लिए जो पूरे के पूरे एम्पायर की सुरक्षा को देखता था, एंड दैट मिनिस्टर वाज नोन एज द फाइनेंस मिनिस्टर. सॉरी, डिफेंस मिनिस्टर, नॉट फाइनेंस. फाइनेंस मींस जो पैसे की देखरेख के लिए होता था, फाइनेंस को देखता था, दैट वाज फाइनेंस मिनिस्टर. एंड डिफेंस मिनिस्टर्स टास्क वाज टू लुक आफ्टर द सिक्योरिटी ऑफ द किंगडम. तो पूरी की पूरी किंगडम की सिक्योरिटी को देखना, लोगों को सिक्योर रखना, किंगडम को सिक्योर रखना, दैट वाज द टास्क ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. व्यापारिक एक्टिविटीज को देखने के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स को देखने के लिए देयर वाज अ डिफरेंट मिनिस्टर दैट वाज नोन एज द ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर. इन दिस वे द किंग अपॉइंटेड द वेरियस मिनिस्टर्स फॉर द डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. गुप्ता किंग्स कंसल्टेड देयर मिनिस्टर्स एंड इशूड इंस्ट्रक्शंस टू देयर ऑफिशियल्स. सो जो गुप्ता किंग्स होते थे, दे फ्रीक्वेंटली कंसल्टेड विद दीज मिनिस्टर्स. इन मिनिस्टर्स के साथ उनकी कंसल्टेंस जो थी वो होती रहती थी. एंड दे इशूड द इंस्ट्रक्शंस टू देयर ऑफिशियल्स. तो किंग जो था इन ऑफिशियल्स को, अपने मिनिस्टर्स को इंस्ट्रक्शंस इशू करता था इन अ रिटन वे टू, एंड ऑल द इंस्ट्रक्शंस वर फॉलोड बाय दीज मिनिस्टर्स. क्लियर है. नेक्स्ट है बच्चे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. नंबर जो थर्ड लेवल है अंडर द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हेड, there was council of ministers. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वैसे आपको इसकी हेडिंग से ही समझ आ गया होगा. मीन्स देयर वाज अ कलेक्टिव असेंबली ऑफ मिनिस्टर्स, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, दैट इज नोन एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और मंत्री परिषद. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, assembly of ministers. Or we can say group of ministers. ठीक है. Collectively these ministers are known as the council of ministers और मंत्री परिषद. और इनको क्या बोला जाता है? मंत्री परिषद. क्लियर है. इट एडवाइज द किंग ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स. तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, फॉर व्हाट पर्पस दे आर फॉर एडवाइजिंग द किंग ऑन द इम्पॉर्टेंट मैटर्स. इम्पॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर ये राजा को अपनी एडवाइस देती थी और राजा की हेल्प के लिए होते थे. दे हेल्प द किंग फॉर द डिसीजन मेकिंग एज वेल एज परफॉर्मिंग द अदर टास्क. क्लियर है. सो नेक्स्ट इज द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. बच्चे so the Gupta kings divided the administration into two parts: central administration and provincial administration. So the central administration, this is further divided into provinces. जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है वही जो है आगे किसमें सब डिवाइडेड है? प्रोविंसेस में डिवाइडेड है. द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस नोन एज देशा, राष्ट्र और भुक्ति. तो इनको क्या बोला जाता है? देशा. देशा मीन्स देश और राष्ट्र और भुक्ति
तो ये डिफरेंट नेम्स हैं प्रोविंसेस के। प्रोविंसेस को देशा भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज राष्ट्र एंड भुक्ति। सो प्रोविंसेस वर नोन एज देशा, राष्ट्र एंड भुक्ति, एंड दे रन द एडमिनिस्ट्रेशन वेरी स्मूथली। ठीक है, द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज, जो प्रोविंसेस का हेड होता था एट द प्रोविंशियल लेवल, द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द भुक्ति वॉज नोन एज उपारिका। सो जो इनका हेड होता था प्रोविंसेस का, that was known as Uparika. Head of the provinces was known as Uparikas and he was appointed by the king himself. तो Uparika को कौन अपॉइंट करता था? That Uparika was appointed by the king. Next आ गया, these provinces were further divided into districts. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। जैसे स्टेट्स जो है हमारी वो जिलों में डिवाइडेड है ना। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आ गया नंबर 3 लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, एवरी प्रोविंस और भुक्ति वॉज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स नोन एज विशयस। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स को जब डिवाइड किया गया तो इनका नेम क्या है, विशयस। जैसे प्रोविंसेस को देशा, राष्ट्र या भुक्ति कहते हैं, वैसे ही दीज डिस्ट्रिक्ट्स वर नोन एज विशयस। The highest official at the level of district was known as Vishyapati, और जो इसका हेड होता है डिस्ट्रिक्ट का, that was known as Vishyapati. Head of the province was known as Aparika and head of the district known as Vishyapati. ठीक है, क्लियर है बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर डिवाइडेड इनटू विलेजेस। तो डिस्ट्रिक्ट्स किस में डिवाइड हो गए, विलेजेस में डिवाइड हो गए। विलेज वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे छोटी यूनिट है विलेजेस, एंड द विलेजेस वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द रूलर अथॉरिटी। रूलर बॉडीज होती हैं, रूलर लोकल लेवल पे जो अथॉरिटी है, द हेड ऑफ द विलेज या एल्डर पर्सन जो होते थे, दैट वाज एडमिनिस्ट्रेटेड द विलेज। तो विलेज को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए विलेज हेडमैन और विलेज के जो एल्डर पर्सन हैं। द रूरल बॉडी वॉज नोन एज ग्राम सभा और ग्राम परिषद। तो विलेजेस को क्या होता है, जो इनकी जो एक बॉडी बनी होती है, ग्राम सभा और ग्राम परिषद। क्लियर है, एंड दिस विलेज वॉज हेडेड बाय द ग्रामीण। सो हेड ऑफ द विलेज known as Gramika. As the head of the province known as Uparika, head of the district known as Vishyapati, the head of the village known as Gramika. Clear है? This was the Gramika or Gramadhyaksh. We can say both the names. We can say that it may be known as Gramika and Gramika is also known as Gramadhyaksh. ग्राम का जो अध्यक्ष होता है, ग्राम का जो हेड होता है, ग्रामाध्यक्ष। क्लियर है? नेक्स्ट इज द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। रेवेन्यू सिस्टम, व्हाट काइंड ऑफ रेवेन्यू सिस्टम वाज अडॉप्टेड बाय द गुप्ता किंग्स? तो गुप्ता एम्परर्स पेड अ स्पेशल अटेंशन टुवर्ड्स द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। Actually, the agriculture was the main source, main occupation of the majority of the people. जो वहाँ के लोग थे, majority of the Gupta people, Gupta age people, they were engaged with the occupation of agriculture. Agriculture से engaged थे वो लोग, and hence there was a great stress laid on the revenue system because land was the main source of revenue. Which was the main source of revenue? मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था वो लैंड। मैक्सिमम रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम द लैंड, हेंस लैंड रेवेन्यू वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टेट इनकम। तो स्टेट इनकम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स था, एंड ऑलमोस्ट हाउ मच रेवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय देम? तो इट वाज डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ लैंड। इफ लैंड्स क्वालिटी इज गुड देन 1/4, अदरवाइज इट मे बी 1/6। सो द इट्स रेट वाज 1/4 और 1/6 according to the quality of the land. Okay, 1/4 or 1/6 of the produce was realized as a land revenue by the state. So this was the main source of income for the administration for the state.
द गिल्ड्स एंड द ट्रेडर्स हैड टू पे ट्रेडिंग टैक्सेस। तो जो गिल्ड्स बने हुए थे, गिल्ड्स का मतलब होता है बच्चे, गिल्ड्स मीन्स सोसाइटीज या ग्रुप्स ऑफ ट्रेडर्स। सो गिल्ड्स ऑफ द ट्रेडर्स के जो ग्रुप होते थे, ट्रेडर्स की जो सोसाइटीज हैं, सो गिल्ड्स एंड ट्रेडर्स दे ऑल्सो हैव टू पे द टैक्स, ट्रेड टैक्स, and if they did not pay the tax, if guilds did not pay the tax or failed to pay the tax, their licenses were cancelled। तो उनके लाइसेंस जो थे वो कैंसिल कर दिए जाते थे और they had to pay 8 times more than the original tax। तो पेनल्टी होती थी, पेनल्टी क्या थी, they had to pay 8 times more than the original tax। जो उनकी ओरिजिनल अमाउंट बनती है उससे 8 टाइम्स ज़्यादा। सपोज उन्होंने 1000 देना है, तो अगर उन्होंने पे नहीं किया है देन दे हैव टू पे 8000, मीन्स 8 टाइम्स मोर टैक्स दे हैव टू पे if they are not paying the tax on time। So this was the penalty system during that time। Clear? So this is all about the Gupta administration, and with this this chapter is finished, and in the next video session we will discuss the next chapter, that is medieval India, and in that we will discuss about the Cholas। So please bache watch this video up to the end carefully and try to understand the concept of the Gupta's administration। Thanks and have a nice day।